نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک جل شانہ ازل تو لائے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر عشق الہی دی بیماری دا ذکر کران گے قرآن کریم دے سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک دے اندر سنے رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور مسلمان او لوگ نے جنہیں اللہ رب العزت نہ شدت نہ محبت کر دے، یعنی جنون میں عشق کر دے اپنے اللہ نہ، وہ لوگ مسلمان نے۔ یعنی اللہ رب العزت نے مسلمان دسیا کہ مسلمان جڑے ہیں نا سچے وہ اللہ پاک نہ جنون میں عشق کرتے ہیں۔ یعنی یہ عاشقاں لوگوں میں اللہ کا خاص انعام ہے، یہ اللہ رب العزت نہ سچی محبت کرتا اللہ رب العزت عشق چونکہ اللہ کی صفت ہے تو اللہ پاک اپنے عاشقاں تے نور صفت عشق الہی دا پرتاؤ پاؤندا تے جہدے نال انہاں دے اندر ہر لہر دے اندر انہاں دے ظاہر و باطن دی ہر لہر چھپی چنگاری جڑی ہے عشق مولا دا پرتاؤ موجود ہے، وہ سر کڈھن لگ پیندا آہستہ آہستہ اور ترقی کردا جاندا اور عشق جنون دن بدن وددا جاندا جڑا سچے نے، لیکن عشق کا روگ نصیبہ والے لگتا ہے۔ نور عشق الہی خوش قسمت ہے جنہاں تے اللہ رب العزت انعام فرماؤندا۔ اللہ دی ذات دی کوئی حد نہیں، اس واسطے اللہ دے سچے عاشقاں دے عشق دی بھی کوئی حد نہیں۔ یہ انہاں عاشقاں دا کمال نہیں ہے، اللہ دا کمال ہے جہاں رب سونے نے وہ نور عشق الہی انہاں تے برسایا، یہ دا کمال ہے سارا۔ تائیں کلندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا سکا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ عشق کی ایک جس نے کر دیا کہ ساتھ تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، جس طرح شاخ گل میں باد سحر گاہی کے نام۔ ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو عشق تو مسلمان بھی کافر ہو زندیق۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، نہ ہو عشق تو شرع دی بت کلا تصورات۔ اے اللہ رب العزت کا انعام ہے میرے تو انہاں لوگوں نے سچے مسلمان نے جڑے اقرار باللسان دے نال نال تصدیق و بالقلب بھی کر دیا۔ اے وہی لوگ ہیں جنہاں روزے اللہ سے زبان دے نال دل دی گہرائیاں جو بلا کیا سی، جنہاں کڈیاں تو روزے اللہ سے بلا کیا سی، اور دنیا دا نعمتاں پیچھے دوڑ کے دنیا اج بھی آگے ہی کچھ کر دیا، لیکن اللہ رب العزت مہربان ہے، انہوں نے تمام حجر ماہ سے سنے رب نے اسے بات دنیا پھر بھیج کے اپنا پیغام دیتا آخری قرآن پاک جہدے بارے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے گا قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سچے اللہ والے جڑے آ وہ اس راہ چ نکل رہے ہیں کہ اللہ دسے پروگرام دے مطابق زندگی گزار دے اپنا مقصد حیات حاصل کرنے واسطے۔ کیونکہ رب نے قرآن سارا پروگرام دے دیتا کہ انسانوں تمہیں میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیا، وہ طریقہ اس نے رب نے قرآن سے دس دیتا۔ تذکرہ اولیاء نے لکھیا
कि हज़रत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह नूं लोगों ने पूछा कि बीबी जी बाजार तुहानूं कोई बीमारी नहीं है, लेकिन तुसीं हर वेले हुज़न च रहिंदियां, रोंदे रहिंदे हो, वजह की है? हज़रत बीबी राबिया बसरी फरमाउण लगियां कि मेरे सीने दे विच बीमारी है, यानी इश्क इलाही की बीमारी है, जिसका इलाज दुनिया के किसी हकीम को है नहीं। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू दा दीदार है। हज़रत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी वलिया हुई अल्लाह सोने दियां। इसे तज़किरा वाले लिखा कि बीबी राबिया बसरी दे कोल कुछ अल्लाह वाले सूफी हाजिर होए तो बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने पूछा कि तुसी अल्लाह की बंदगी क्यों कर रहे हो? एक सूफी कह लगा कि दोज़ख तो बचने वास्ते करते हैं कि ताकि असीं जहन्नम की अग तो बच जाइए। तो दूसरे सूफी ने पूछा, कह लगा मैं जन्नत फिरदौस वास्ते करना है अल्लाह की बंदगी और इबादत। हज़रत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह कह लगी ये तो बहुत बुरी गल है कि जन्नत और दोज़ख वास्ते इबादत की जाती है। तो लोगों ने पूछा, बीबी जी तुहाडी इबादत की तुसीं क्यों इबादत अल्लाह की करदे हो? आप फरमान लगे मेरे वास्ते दोज़ख जन्नत जिहड़ा ये बराबर है। इबादत अल्लाह का हुक्म है, फर्ज है, इस वास्ते मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इबादत करनी है। तो अल्लाह के बंदे अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत दोज़ख ना बनाउंदा तो बंदे उसकी बंदगी तो मुनकर हो जाते। हज़रत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह फरमांदी खौफ उम्मीद तो हट के इबादत करनी चाहिए है। इबादत जिहड़ी ना तो जन्नत की तलब च करनी चाहिए है, ना दोज़ख तो खौफ तो करनी चाहिए है। इसी तरह ही इसे तज़किरा वाले लिखा एक बुजुर्ग बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह ज़ियारत वास्ते हाजिर होए। जब देखा कि बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह का पुराना लिबास है फटिया पुराना, वो कह लगा बीबी जी तुसी मैनू इजाजत दिओ तो कई बंदे तुहानू नवा लिबास देण नूं तैयार ने, लेकिन तुसी कबूल दिया नहीं। तो बीबी राबिया बसरी कहन लगियां कि मैनू गैरां को लंदियां शर्म आउंदी है, दुनिया का हकीकी मालिक जिहड़ा अल्लाह सोहना है तो दुनिया वालियां नूं जो कुछ भी अल्लाह ने नेमतां दित्तियां आरिया धन है, आरजी है, इन्हां को मंगदियां होया शर्म आउंदी है मैनू। वो बुजुर्ग हज़रत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह सब्र बेनियाजी देख के हैरान हो गए। एक बारी हज़रत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह बीमारी की वजह पूछी किसी ने कि बीबी खैर है किवें बीमार होए, की वजह होई? आप कहने लगे मेरा दिल जो जन्नत तरफ मुतवज्जो हो गया सगा, अल्लाह पाक इस गल से नाराज होए, तो उस नाराजगी की वजह नाल ही मैनू मैं बीमार हो गई। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह नूं पता लग्या कि बीबी राबिया बसरी बीमार है। आप उन्होंने इयादत वास्ते गए, जो उत्थे इबादत वास्ते गए देखा वो दरवाजे के उत्ते एक अमीर आदमी बैठा रो रहा, तो उहदे कोल दिरहमां दी थैली मौजूद है। तो हसन ख्वाजा हसन बसरी ने रोने की वजह पूछी की मामला है? वो कहने लगे मैं थैली लैके आया पैसे वाली कि बीबी राबिया बसरी कबूल कर लैन, तो लेकिन मैनू पता वो कबूल दी किसी का नजराना नहीं कबूल दिया उमर आ गया अमीरा का। तो मैं इस वास्ते रोन लिया कि मेरा नजराना भी ठुकरा ना देना, तो तुसी मेहरबानी करो मेरी सिफारिश कर दो। हजरत ख्वाजा हसन बसरी अंदर गए, जाके बीबी ने सलाम किया तो वो सिफारिश की थी कि उस बंदे की कि वो तुम्हारी खिदमत करना चाहता बाहर बैठा है, कबूल कर लो। बीबी राबिया बसरी फरमान लगी है कि हसन जब मैं अल्लाह सोहने को पहचान लिया ना तो मखलूक को
ਲੈਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। और ये भी पता नहीं ये पैसे हलाल है या हराम है, तो मैं मखलूक ना ताल्लुक तोड़ के अल्लाह ने जोड़ लिया, जैसा इस रब ने कुरान में फरमाया वतबत्तल है तबदीला व इला रब्बिका फरग वल्लज़ीना आमनू अशद्दु बिल्लाह। कुरान पाक में रब ने दस्सिया है सारा धर्म अपने दीदार वास्ते साडा जेड़ा तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है और यही सीधा रास्ता ना मेरी बारगाह तक पहुंचदा। इस वास्ते ये नेमत खुश नसीबा को मिलती है। करदे डॉक्टर इमाम इकबाल फरमाते हैं इश्क की एक जस्ते कर दिया किस्सा तमाम ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। इमाम इकबाल फरमांदा नूर इश्क इलाही दी कुव्वत ने पलक चपकण तो पहला नूर ज़ुल्म दे 70,000 पर्दे जिहड़े जिहदा हदीस पाक जिक्र ने जो गुजार के मैनूं अल्लाह तक पहुंचाता। अजीज सफीपुरी लग शेर है, कहते कि मुझे इश्क ने ये पता दिया ना हिजर है ना वसाल है, उसी ज़ात का मैं ज़हूर हूँ, ये जमाल उसी का जमाल है। यानी जो कुछ भी ये कायनात के अंदर मौजूद है तो सब अल्लाह के नूर हकीकत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्स और अक्सी ज़हूरात है। और आज की साइंस ने इन्हां गल्लां तस्लीम कर लिया तहकीक तजर्बे और मुशाहदात तो बाद। और आज की साइंस ने तो हकीकत बन ली कायनात की हर चीज़ की हर लहर जी है गैर बड़ी लतीफ लहर की बनी है और एक किसी चीज़ का अक्स है। तो सोने रब ने कुरान दसता अल्लाह नूर समावात वल अर्द ना अव्वल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातिन भी, ये नहीं अल्लाह वाले वाहतल वजूद वाहतल वजूद और वाहतल शहूद के जरिए समझौते दोनों का मकसद एक कर सिर्फ लफ्जी निज़ा है। तो हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जे तू आशिक बनया लोड़े ते पल्ला पकड़ सजण दा जान मंगे ते दे शताबी सरफा करी ना तन दा। यानी आप फरमा दे आगे अपने मुर्शद दा पल्ला कोट के फड़, क्योंकि अल्लाह ने कुरान दस्या वब्तगु लहुल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही कि मेरी बारगाह तुसी मेरे मुर्शद रही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत ही मेरे फजल तौफीक ना मेरी हजूरी पहुँच के मेरा दीदार कर सकते हो। फिर ही तो ईमान हकीकी इरफान हकीकी फनाफे ज़िक्र सुल्तान अज़कार फनाफिल्ला बकाबिल्ला हकुल यकीन फ़क्र मुहम्मदी का कमाल हासिल होएगा। फिर ही तो बाती तसर्रुफात कुंदियाँ नेमतां अदा कीतियां जाणगियां। इहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया कि मैनू अपने फ़क्र ते फख्र है और एक कमाल खुश नसीबा ने मिलता। तो हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फरमाते आ जब कदे दिल ना छड़ी इस राह तुरया रही मंजिल जरूर मिलेगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिजर की वादी तो गुजारते हैं कुछ अरसा जिहदे बारे मियां मोहम्मद बख्श खरी शरीफ वाले फरमाते हिजर तेरा जे पानी मंगे तो मैं खूह नैना दे गेड़ा जी करदा तेन कोल बिठा के दुख पुराने छेड़ा। इस वास्ते भी मोहम्मद बख्श फरमाते जे दिल पर मुंह लाए नहीं तू मुख मूल ना मोड़े तो डूंगी नदी इश्क के अंदर जो जामा सब रोड़े। इस राज मुंह ना मोड़ी सच्चा वापस नहीं जाता। तो जो अल्लाह पाक किसी सिद्क सच्चाई देखता फिर उन्हें हिजर की वादी चो गुजारता फिर उन्हें इश्क नगर दाखिल करता फिर अपनी बारगाह तक रसाई देता। डॉक्टर इलामा इकबाल ता ही आखे अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। हदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब आंख का नूर दिल का नूर नहीं। तो एक खुश नसीब है जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है ये नेमत अता फरमांदे इश्क दी, लेकिन ये नेमत मिलनी है सच्चे अल्लाह वाले को। क्योंकि जब तक इंसान अपने पीर मुर्शिद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल नहीं करता तो शैतानी नेटवर्क का रबता नहीं टुटता और
रहमानी तौहीदी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क का राबता नहीं होंदा ते राहे मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकदा। ਉਹਦੇ वास्ते अपने मुर्शद को अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी की जाग अपने अंदर लानी जरूरी है, कनैक्शन हासिल करना जरूरी है। यही अल्लाह की सुन्नत तमाम अल्लाह वाले इस जरिए ही अल्लाह तक पहुंचे ने। बगैर मुर्शद तो इस रात जेड़ा भी चलिया तमाम बर्बाद हो गया। तो जो कुछ भी ज़हूरात है सारे इश्क के ज़हूर है, कायनात की हर लहर के अंदर नूर इश्क इलाही का परता मौजूद है, जिन्होंने अज के साइंसदान लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, यानी कानून इश्क, यानी कानून कशिश, यानी हकीकत के कानून इश्क है। लेकिन चूंकि गल्लां छुपा जाते हैं कि ताकि कुरान की गल सच ना हो, तो कुरान की गल तो सच अज भी सच है, सच ही रहनी है, जिन्हें मर्जी छुपा लेने साइंसदान काफर मुनाफिक जिन्हें ने। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं इश्क का जलवा हर हर जा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। खुद आशिक खुद माशूक पढ़िया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये सब जलवा राही अल्लाह सोने दी है। इस वास्ते हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किथे राजे एनल हक फाश थिया, किथे राजे एनल हक फाश किया, किथे सुबहानी दा विरद पढ़िया, किथे इन्नी अब्द रसूल किया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। है इश्क दा जलवा हर हर जा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये सब उहदे नूर दे ये सारे ज़हूर है जिन्हें भी कायनात दे अंदर है। अल्लाह पाक दा अपनी सोनी पाक ज़ात ना ज़ाहिर बातिन हर जगह हाज़िर मौजूद है। लेकिन गाफिल लोग उस गल महसूस ही नहीं करते, सच्चे महसूस करते हैं, इसका इदराक करते हैं, ये बिलीफ उन्होंने हुंदा है। जिवें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इश्क तरक्की करता है तो इंसान तलाशे मौला ही लग पैंदा, खुद तो लैके खुदा तक का सफर फिर वो करता है। कुरान सुन्नत की रोशनी हमेशा इजमा अहले सुन्नत दे नाल रहिंदा। गुमराह 72 जहनमी फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरब अफला दुनी दजाली बाबिया नाम ने हाथ बुद्धा दिल इस्लामी रूहानी है सरदारा तो मुंह मोड़ के सच्चे दिल सही अकीदा आले सुन्नत वाजबात अपने मुर्शिद को अपने अंदर भी जाग लाता तो फिर ही इश्क की प्यारी छोड़ी शुरू हो जाती है और इश्क तरक्की करता है। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते मेरे इश्क दे विच माशूक ना हो नहीं अज तो गलत निगाह की, तेरी हर मुलाकात मैं इंज की जिवें मूसा दे नाल खुदा की, नहीं फर्क किया तेरी पूजा विच, नहीं खतरियां दी परवाह की, एक तैनू रब नहीं कह सकता बाकी सारी रस्म अदा की। मेरे अपने मुर्शिद के बारे फरमा दे कि मैं चलो रब तो नहीं कह सकता, रब रब है बंदा बंदा है, लेकिन तुसी रब वाले हो अल्लाह वाले हो, अल्लाह दे नूरे हकीकत मुहम्मदी आता अक्सी ज़हूर हो। लेकिन अकल वाले ने गल समझ नहीं आ सकती, जिन्हें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लाह इकबाल फरमाते अकल को तरकीब से फुर्सत रहे इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। अगर कोई गल समझ नहीं आती इश्क नाल समझ आनी है, अकल ना समझ नहीं आने। तो जेनू इश्क का रोग लग गया जी बीबी रब उस बसरी का मैं तेन वाकया सुनाया तो फिर इश्क कुर्बानियां मंगता, सब कुछ कुर्बान करना पैंदा अल्लाह रसूल ते फिर पेशवा ते सैयद गिदा जिंदा दिल उलमा मशाइख ते मसाजिद मदारस ते सचियां खान खानकावां ते रफाई अदारियां ते दुखी इंसानियत ते सच्चा आशिक सब को लौटा देता। बकौले शायर इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं, क्योंकि इश्क के स्कूल के अंदर ये अपने एक असूल है बकौले शायर कि मकतब इश्क का दसूर निराला देखा उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबकी याद किया। क्योंकि इस स्कूल की छुट्टी नहीं है नमाज इश्क जी है वाइला रब्बे का फर्क अब वह तो बतल रहा है तब्दील अली कुरान दसे जो नींद रहा इंसान फराफे तौहीद
ਗਰਕ ਫਿਰ ਤੌਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਬ ਸੋਬਤ ਬਾਈਅਤ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ। ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਇਰਾਦਾ ਇਲਾਹੀ ਫੇਲ ਇਲਾਹੀ ਤਕਦੀਰ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਕਲਬ ਰਫਰਾ ਫਿਰ ਤੌਹੀਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਕੂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਵੇ ਬਲਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ। ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखज़ फैज़ करके आप भी रहमत लिल आलमीन दा अपने अपने इलाकों के विच सजावां नूं सकान करते रहते हैं, फातो बलियात नूं भजाउंदे रहंदे आ। बिलमतियाज रंगो नस्ल मजमू मिले दुखी इंसान की खिदमत करते रहते हैं। जरासीमां नूं, वायरसां नूं, बैक्टीरिया नूं, फंगसां नूं और इंसानां नूं नुकसान देने वाली चीज़ां नूं तबाह बर्बाद करते रहते हैं। क्योंकि सच्चे अल्लाह वाले रियाज को मुजाहिदीन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मेहनत की करके अपने पेशवा के ज़रिए निगरानी मसूल रियाज को मुजाहिदात मुराकबात इसबार के कुर्ब वलायत कीते रूज को परवाज पैदा हुई है। तो फिर ही अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल की। क्योंकि इन्होंने लोगों ने सारा साल अपने हवास की, अपने सोचा की, अपने दिल की कड़ी निगरानी की। और नफ्स, शैतान, दुनिया, इन्होंने पुजारियां, मासवा, अल्लाह खलकी सबाब और अरबाब तो कल्बन हमेशा लिए निकल गए। इदा निकले कि कोशिश भी करते मासवा अल्लाह का ख्याल नहीं आता। तो सारा इश्क का कमाल है। तो जेडे इश्क नूं नहीं समझते, रोजे लसदे बागी जेडे आ, इन्हां जिन्नी मर्जी तुसीं दावत दिओ, कभी भी इस पासे नहीं आना। बहरहाल इसलिए कि थोड़े रब ने इन्होंने अपने दोस्तों की लिस्ट में डिलीट करता, रोजे लिस्ट ही डिलीट करता सका। लेकिन सच्चे जो भुलेखे ना काफरा इन्ह मुनाफक गुमराह 72 जहनवी फिर गया 2 नंबर गैर शराब बाबिया को फस भी जान भुलेखे ना तो फौरन तो अलग हो जाते हैं। और सच्चे अल्लाह वाला दामन फड़वे जाके उन्होंने को रक्षण हासिल करते हैं। इश्क के बारे हज़रत पीर वारिस शाह फरमाते, बड़ा इश्क इश्क तो करना है। कदे इश्क दी इश्क का गुंजन खोल तो सही, तेन मिट्टी में ना रोल दे, दो प्यार के बोल तो सही। सुख घट तो दुख हजार, दर्द हजार मिले ना, सुख घट तो दर्द हजार मिलना। कदे इश्क नूं तकड़ी तोल तो सही, तेरी हसदी अख भी भेज जावे, कदे सानू अंदरों फोल तो सही। ये जिन्होंने रोग इश्क का लग जाता है, वो नहीं दूजा ऐसी कैफियत नूं की समझ सकता। तो तमाम अल्लाह वाले दाई इश्क इलाही, ऐसे इश्क इलाही दावत दंदे गए ने, दे रहे ने, दंदे रहणगे। इस वास्ते हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि जीना इश्क हकीकी पाया तो मुँह ना कुछ अलावण हो, जिक्र फिक्र विच रहन हमेशा, दम लो कैद लगावण हो, दम दम नाल फिरो हर दम जिक्र सज्जण दे अंदर कुल जहान भुलावण दी कैफियत हुंदी उन्हां दी। जिवें मियां महमूद फरमांदे आ, हज़रत सुल्तान बहू फरमांदे, जो दम गाफिल सो दम काफिल, सानू मुर्शिद ही पढ़ाया हो। लेकिन दुनिया वाले इस पासे नहीं जा सकते, क्योंकि ख्वाहिशात के पिछे लगे हैं। लज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, शगले, फलक, झूठ, हराम, धोखा दगा, फराड, रिया, निफाक, हिर्स, हवस, लालच, गुस्सा, नफरत, इंतकाम, नशा, जुआ, सूद, ब्लैक मेलिंग, झूठ, हराम दे, नामीदी, मायूसी और अल्लाह सूदिया नाफरमानियां चुल गया, ज़लील रसवा होंदे आ। सारे नफ्स परस्ती इंसान दुखा, गमा, मुसीबत, जिस्मानी रूहानी नफ्सियाती बीमारियां ही फसाद दिया, दो जहान बर्बाद कर देंगे। इस वास्ते रब ने कुरान च मना किया, वला तत्ताबिल हुबा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह, कदे नफ्स की ख्वाहिश ते अमल ना करे तो अल्लाह की राह तो रोक दो। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह फरमाते, मंगण ईमान शर्मावण इश्को, दिल नूं गैरत होई हो, इश्क सलामत रखी बाहू, दियां ईमान तरोई हो। हज़रत सुल्तान बहू फरमाते कि इश्क जड़ा इस तो बगैर गुजारा नहीं।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਮਾਨ ਮੰਗਣ ਇਮਾਨ ਸ਼ਰਮਾਵਣ ਇਸ਼ਕੋਂ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗਰਦ ਹੋਈ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਸਲ ਨਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਇਮਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਅਸ਼ਦ ਹੁਬਨ ਲਿल्लाह। یہ سنے رب نے سورہ بقرہ دی 165 آیت پاک دسیا یہ نعمت خوش نصیباں نوں ملدی ہے۔ بہرحال اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ روح ایمان عشق مولا حاصل کریے، لیکن یہ سچے بادشاہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل اثار خدمت خلق عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عشق الہی بتاکر بدعہ رخصہ طویلہ شیطانی رسم و رواج اور شیطانی نظامات دشمن سچا اللہ والیاں کو یہ جاگ لبنی ہے سچے مرشد کو، پھر جا کے ہی انسان راہ بڑھتا مسافر بنے گا، اللہ طرف دوڑے گا جنہیں سنے رب نے قرآن جو فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ طرف، تو پھر ہی انسان اسے دنیا دی مولا دی نعمت حاصل کر سکتا، دل دی آئے گا جلدی آنکھانا تو اتنی نعمت حاصل ہو تو پھر ہی آخرت چ کھلی آنکھانا دیدار الہی نصیب ہوئے گا۔ اس دنیا کی کھلی آنکھانا دیدار الہی صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوندا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی تو واقف ہے، میرے ماضی حال و مستقبل حال تو واقف ہے، اس واسطے اپنے پیار والے کا خاصا درود پاک براہ راست کوئی سنو دیا اما دا درود فرشتے لے کے جاتے آپ دی بارگاہ، ہر درود پاک دنیا دے ہر دکھ دا علاج ہے۔ عبادت وظیفہ ہے جنہیں اللہ پاک فرشتے شریک ہے جنہیں وچ بہرحال سانو چاہیے گزرا وقت اور نہیں آن وڑتا تو باہر کوئی نہیں موجودہ سا لمحہ قیمتی دی قدر کریے، یہ دنیا چند دیر دا ویلا مک جانا، سانو چاہیے سچے طرح ایمان لئیے، سچی توبہ تب نصوح کریے، سچے مرشد کو بادشاہ سچے مرشد کے توحیدی پروڈکشن لئیے، پھر اس راہ اللہ کے حکم کے مطابق وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تو خوب ریاض کو مجاہدہ کریے مسلوں تاکہ یہ مولا بھی نعمت حاصل ہو جائے سب دنیا اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا ہستا بڑے حقیر پر تفصیل مارے کمزور کامل باجز مسکین بے سہارا انسان ہے صاحب پھر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات مولا سنا ساڈا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرما، تیرے علاوہ سانو کسی سارے دی لوڑ بھی کوئی نہیں، ساڑی خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، قرآن کے اسلام کو غلبہ عطا فرما، کافرہ منافقہ دے غلیظ منصوبے ناکام فرما، اپنے دائمی جزا دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بس یارو باقی ساری فانی دنیا ہوسا ہوسا ہوسا، بچو 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 بچو، دنیا تو پھر نہیں ہونا، وما علینا الا البلاغ المبین۔